Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendants here. I am Anagar representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the banking features and the payment request in Tally Prime. But before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So we'll welcome our speakers. The presentation will be conducted by Tejashri. So Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration by Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, I'm available. Thank you. Hearty welcome, all of you. So now I request Tejashri and Sonali to move ahead with your presentation. Okay, ma'am. My screen is visible, ma'am? Yeah, it's visible. Okay, thank you. Hello, everyone. Myself Tejashri. I am representing a webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. So today we are going to discuss about the very interesting topic, that is banking features and payment requests in Tally Prime. So let's begin with the banking features in Tally Prime. The banking features in Tally Prime provides an end-to-end solution to the banking needs for running your company. You can use its e-payment capability to make timely payments to your parties, manage checks, reconcile bank statements and others. So Tally Prime में आपको बैंकिंग फीचर्स दिया गया है जिससे आप आपके कंपनी को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो. आप ई पेमेंट का यूज कर सकते हो जिससे आपके पेमेंट कलेक्ट करने में आसानी होगी. आप आपके चेक्स को मैनेज कर सकते हो और बैंक रिको भी कर सकते हो. नेक्स्ट है ऑटो कॉन्फ़िगर चेक प्रिंटिंग. You can maintain a record of all payments made using check, or if you have received payments through check from your parties. In Tally Prime, you can configure the check based on the type of checkbook you use in your business. So Tally Prime में आपको चेकबुक का फैसिलिटीज भी आपको दिया गया है जिसको मेंटेन करके आप पेमेंट का ऑल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो. साथ साथ जो पेमेंट रिसीव हुआ है चेक के थ्रू वो भी आप ट्रैक कर सकते हो. टैली में चेक को कॉन्फ़िगर करने के लिए चेकबुक का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप इजीली आपके चेक्स को ट्रैकिंग कर सकते हो. नेक्स्ट है चेकबुक मैनेजमेंट. यूजिंग द चेकबुक मैनेजमेंट सिस्टम you can maintain multiple checkbooks and enable auto increment of check numbers during voucher entry. This feature helps reduce manual errors and increase the speed of data entry. टैली में आप मल्टीपल चेकबुक मैनेज कर सकते हो. इससे आपके मैनुअल एरर्स जो भी होते हैं टैली में वो कम हो जाएंगे और आपको आसानी होंगी आपकी डेटा एंट्री में स्पीड बनाने के लिए. नेक्स्ट है ऑटो बैंक रिकंसिलेशन. In Tally Prime, the bank reconciliation feature simplifies the complexity of managing mismatches between your accounts. You can print bank reconciliation statement anytime you need. Tally में आपको ऑटो बैंक रिकंसिलेशन का भी फीचर दिया गया है जिससे आप आपके अकाउंट्स के जो भी मिसमैच है वो मैनेज कर सकते हो और आप कभी भी आपके बैंक रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट टैली से प्रिंट निकाल सकते हो. Next step, payment advice and deposit slip. Payment advice is a money order that is established at the initiative of the utility, and the check deposit slip option in the banking menu allows you to generate deposit slip for the payment received through check or demand draft which need to be deposited into bank. Tally Prime में आपको पेमेंट एडवाइस जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है. साथ साथ अगर आप चेक बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हो तो डिपॉजिट स्लिप भी आप टैली से जनरेट करके प्रिंट कर सकते हो.
Next is payment link and QR code. With Tally Prime latest release, you can now integrate with payment gateways and enjoy the benefits of single system. To generate and manage payment link, now you can generate and add QR code and payment link on invoices. Either you do it for a single invoices in the flow of recording invoices or do it in a bulk for multiple invoices. So जैसे कि टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज में आपको और एक फीचर दिया गया है पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड का, तो ये यूज करके आप टैली के आपके गेटवे से इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आप पेमेंट लिंक जनरेट करके और क्यूआर कोड जनरेट करके टैली इनवॉइस में प्रिंट भी कर सकते हो। एक साथ आप सिंगल इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हो और अगर आप चाहते हो तो आप बल्क इनवॉइसेस में भी QR कोड मेंटेन प्रिंट कर सकते हो। So that's it from my side. It's over to you, Sonali ma'am. Thank you everyone. Thank you, Tejasvi. It was a nice presentation. Hello everyone, myself Sonali. आज हम देखेंगे बैंकिंग फीचर्स एंड पेमेंट रिक्वेस्ट इन टैली प्राइम. So just wait, my screen is share. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible, Sonali. Okay, thank you. हेलो, सो आज हम देखेंगे बैंकिंग फीचर्स एंड पेमेंट रिक्वेस्ट इन टैली प्राइम. तो बैंकिंग फीचर्स में हमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट हम जाएंगे बैंकिंग में. तो बैंकिंग में हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे हमें चेक रिलेटेड एंड स्टेटमेंट्स रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट्स दिए गए हैं. तो फर्स्ट हमारा रिपोर्ट है चेक प्रिंटिंग, सेकंड है हमारा चेक रिक्वेस्ट, थर्ड है हमारा पोस्ट डेटेड समरी, स्टेटमेंट में है डिपॉजिट स्लिप एंड पेमेंट एडवाइस. तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी हमारी कंपनी होंगी, उसमें हमें बैंक लेजर क्रिएट करना जरूरी है. तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लेजर क्रिएट किया है बैंक का. तो हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का मैंने एक बैंक लेजर क्रिएट किया है. यहाँ पे हमारा लेजर होगा वो बैंक अकाउंट्स में. यहाँ पे हमें मेंशन करना है पूरा, जो कि हमारा अकाउंट होल्डर नेम क्या रहेगा, उसके बाद जो है हमारा अकाउंट्स नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, और बैंक. अगर आप एजुकेशन मोड पे यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंक लिस्ट शो नहीं होती. जब लाइसेंस यूज होता है तभी हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक की जो भी लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी. तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया. देन उसके बाद यहाँ पे है हमारी ब्रांच दी गई. सेकंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक्स. अगर चेक बुक्स का जो भी रेंज है यहाँ पे अगर हमें मेंशन करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है हमारा फ्रॉम नंबर, हमारा कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और एंड नंबर. यहाँ पे हमारा चेक नंबर्स कितने ऑटोमेटिक से यहाँ पे आ जाते हैं. अगर आप चेक बुक को कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो नाम दे सकते हैं. अगर ये 10 चेक कंप्लीट होने के बाद सेकंड आपका अगर चेक बुक आता है तो यहाँ पे आप वो नेक्स्ट जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं. ये हो गया हमारा एक चेक बुक का ऑप्शन. सेकंड है हमारा एनेबल चेक प्रिंटिंग. ये ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो होता है सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन. इसको जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक का जो भी फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो होता है. जो भी फॉर्मेट रहेगा आपका चेक का तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे चेक प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन लेवल भी दिया गया है. अगर चेक प्रिंटिंग करते वक्त अगर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं. इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से अपना एक ये जो है एंट्री के अगेंस्ट अपना चेक प्रिंट हो जाएगा. टैली से अपन चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं. इसको मैं कर देती हूँ सेव. अगेन हम जाएंगे बैंकिंग में. बैंकिंग में जाने के बाद हमारे यहाँ ऑप्शन है चेक रजिस्टर का. यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे हमारे जो चेक अवेलेबल है 9 चेक्स अवेलेबल यहाँ पे दिख रहे हैं. इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा चेक का जो भी स्टेटस रहेगा वो स्टेटस यहाँ पे शो करेगा. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो एंट्री मेरे 10 पूरे चेक बुक्स थे. तो यहाँ पे मुझे चेक का जो भी स्टेटस है यहाँ पे शो हो रहा है. तो फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरा कोई भी फर्स्ट चेक जो है मेरा ब्लैंक चेक है, वो चेक मेरा यूज नहीं होने वाला है, वो मेरा ब्लैंक चेक है. अगर मुझे यहाँ पे वो स्टेटस में देना है ब्लैंक चेक तो इसको मैं कैसे टैली में बता पाऊंगी.
यहाँ पे मैं स्पेस बार देती हूँ। जैसे मैं स्पेस बार यहाँ पे दबाऊंगी, यहाँ पे मुझे अल्टीएस में एक ऑप्शन शो होगा, अल्टर स्टेटस। जैसे अल्टर स्टेटस पे जाऊंगी तो आपको यहाँ पे चेक स्टेटस में दो ऑप्शन शो करेंगे, ब्लैंक चेक एंड कैंसिल चेक। फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है ब्लैंक। इसको जैसे यूज करूंगी तो यहाँ पे ये ब्लैंक चेक में जाएगा, बट यहाँ पे आपको एक एरर शो करेगा, टू डू दिस यू नीड टू एनेबल द अलो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर। यहाँ पे ये मेरा चेक का जो भी एंट्री यहाँ पे वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है, तो ये मेरा ब्लैंक में नहीं जाएगा। अगर जीरो वैल्यू को यहाँ पे ब्लैंक चेक में अगर हमें ऐड करना है तो हमें पेमेंट वाउचर में जाके जीरो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो यह मास्टर में जाने के बाद अल्टर, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप, यहाँ पे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया, अलो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसको हमें नो है तो यहाँ पे यस करना है। जैसे हम यस करेंगे तो वहां पे हमारा वो जो चेक है ब्लैंक चेक में चला जाएंगे। यस करिए, फिर से जाते हैं बैंकिंग में, चेक रजिस्टर, यहाँ पे सेट ऑर्डर करूंगी, पेमेंट वाउचर अल्टर वाउचर टाइप, वाउचर टाइप में पेमेंट ड्यू, पे डिस्प्ले, सॉरी बैंकिंग में जाना है, चेक रजिस्टर में जाना है, चेक बैंकिंग, यहाँ पे स्पेस बार मिलेगी, स्टेटस यहाँ पे अगर जीरो वैल्यू के ऐड करते तो ये हमारा चेक ब्लैंक चेक में चला जाता है, और यहाँ पे हमें जो है ना स्टेटस में बताता है वो ब्लैंक चेक। तो ये हम ब्लैंक चेक कैसे बता सकते हैं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी अगर कैंसिल होती है तो वो हम कैंसिल यहाँ पे स्टेटस कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको बता दी मैं कैंसिल कैसे करते हैं, स्पेस बार दे देती, अल्टर स्टेटस में यहाँ पे कैंसिल चेक, कैंसिल चेक अगर करते तो यहाँ पे हम कौन सी डेट को वो चेक कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे हमारी डेट आएंगी। उसके बाद अगर जो भी रीजन है इसका कैंसिल करने का वो हमें यहाँ पे बताएगा, तो यहाँ पे हमें वो रीजन डालना है। जैसे मैं रीजन डालती हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे स्टेटस में बता रही वो कैंसिल चेक। तो इस तरीके से हमें ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक जो है यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे चेक इशू। तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में, वाउचर्स, वाउचर में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे पेमेंट में, पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक एंट्री रेज करती हूँ, यस वे अकाउंट, यहाँ पे लेती हूँ मैं अंश एंटरप्राइजेस, अमाउंट देती हूँ 10,000, यहाँ पे लेती हूँ नो रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑटोमेटिक है नंबरिंग यहाँ पे आ जाता है, मैं 2 एंट्री डिलीट करी थी इसलिए यहाँ से वो नंबर हट गया है, यहाँ पे 3 नंबर का वो आ जाएगा। एक्चुअली एंट्री डिलीट हुई थी मेरी यहाँ पे 3.0.1 के रिलीज में, यहाँ पे हमें वो रीनंबर है इसलिए डिलीटेड वाउचर जो है वो यहाँ से हमारे डिलीटेड में चले जाते हैं। यहाँ पे मेरी ये एंट्री सेव हो जाती है। ये एंट्री अगर देखेंगे हमें तो यहाँ पे हमें बैंकिंग में चेक रजिस्टर में हमारी जो भी एंट्री है 5 नंबर्स की एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो 5 नंबर्स की एंट्री यहाँ पे शो हो रही, हमारा यहाँ स्टेटस है रिकनसाइल, यहाँ पे हमारा बैंक रिकनसिलेशन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे हमें ये एंट्री रिकनसाइल में बता रहे। तो इस तरीके से हमारा जो भी चेक का स्टेटस रहेगा वो हम चेक रजिस्टर से देख सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है पोस्ट डेटेड समरी। पोस्ट डेटेड समरी में यहाँ पे हमें अभी कुछ कोई भी एंट्री नहीं दिख रही, रिसीव एंड इश्यू ऐसे 2 ऑप्शन शो हो रहे। अगर कोई भी पार्टी को हम एडवांस पेमेंट अगर कर रहे हैं तो हमें पोस्ट डेटेड में वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। पोस्ट डेटेड का ऑप्शन हमें बैंक के लेजर में शो करेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। मास्टर में जाना, अल्टर, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप्स, सॉरी
लेजर में जाने के बाद एसबीआई अकाउंट में देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, यूज एज नेशनल बैंक फॉर पोस्ट डेटेड वाउचर। यहाँ पे जैसे आप यस करेंगे तो आपका पोस्ट डेटेड वाउचर जो है ऑप्शन पोस्ट डेटेड का, वो आपको वहां पे एनेबल हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको अगर शो नहीं हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद बैंक एंड पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल्स में आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से हमें वो ऑप्शन को एनेबल करना जरूरी है। जैसे हम इसको एनेबल करेंगे तो पोस्ट डेटेड वाउचर में हम एंट्री रेस कर पाएंगे। यहाँ पे जाती हूँ वाउचर्स में, यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है अल्ट कंट्रोल टी, पोस्ट डेटेड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये जो एंट्री ये एडवांस पेमेंट के लिए पोस्ट डेटेड में चली जाएंगी। यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक पार्टी ले लेती हूँ मैं, ये पार्टी को पेमेंट करती हूँ 5000 रुपीज। यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट नंबर, मेरा चेक नंबर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, इंस्ट्रूमेंट डेट भी आ गई। यहाँ पे मुझे पीडीसी इशू डेट बता रही है, पीडीसी इशू डेट जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। मेरी ये डेट में यहाँ पे डाल देती। अगर यहाँ पे आपको कुछ नोट मेंशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप एंट्री सेव करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको बैंकिंग के फीचर्स में यहाँ पे पोस्ट डेटेड समरी में शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये एंट्री शो कर रही है इशू में। अगर कोई भी पार्टी का हमें एडवांस पेमेंट आ जाता है तो वो हमें रिसीव में यहाँ पे शो करता है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो इशू में। हमारा जो भी है, अगर ये ट्रांजेक्शन हमारा क्लियर होता है तो यहाँ पे हम ये पोस्ट डेटेड वाउचर में जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो हम करंट में ले सकते हैं। तो एंट्री ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जस्ट अल्टी का सिलेक्ट करना है तो हमारा ये एंट्री जो है तो पोस्ट डेटेड से हट के करंट वाउचर्स में, करंट लेवल में स्टेटस में चला जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो भी स्टेटस था पोस्ट डेटेड में, वहां से हमारी ये एंट्री हट गई है। सेकेंड हमारा है पॉइंट्स डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप जो है दो टाइप्स की होती है, एक कैश डिपॉजिट और एक चेक डिपॉजिट। तो वो हम देखेंगे आज, कैश डिपॉजिट की एंट्री और चेक डिपॉजिट की एंट्री। वाउचर्स में हम जाएंगे यहाँ पे F4, चेंज मोड कर लेते डबल एंट्री मोड में। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कैश, 10,000 अमाउंट डाल देती हूँ। यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट 10,000। जैसे मैं कैश की एंट्री करूंगी तो यहाँ पे मुझे पूरा ये डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई देगा, मेरे जितने भी नोट्स वगैरह। अगर यहाँ पे आपको मेंशन करना है तो आप ये मेंशन करके इसको सेव कर सकते हो। ये हो गई मेरी कैश की एंट्री। सेकंड हम करेंगे एक चेक डिपॉजिट। रिसिप्ट में जाएंगे, इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे एक एंट्री रेज करेंगे। यहाँ पे मैं लेती हूँ पार्टी, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टी को मैं पेमेंट कर रही हूँ 2,000 रुपीज चेक के थ्रू। यहाँ पे बैंक, यहाँ पे चेक, इंस्ट्रूमेंट डेट। अगर यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने तो आप डाल के इसको सेव कर सकते हो। इसका हम देखेंगे रिपोर्ट में क्या रिफ्लेक्ट होता है। हम जाएंगे यहाँ पे बैंकिंग में, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप, एसबीआई बैंक। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है कैश डिपॉजिट स्लिप। ये हमारे कैश एंट्री थी, ये कैश डिपॉजिट स्लिप में हमें शो हो रही है। यहाँ पे आप F5 करेंगे तो F5 करने के बाद यहाँ पे हमारे सेकंड एंट्री जो है वो चेक डिपॉजिट स्लिप वाली एंट्री और कैश डिपॉजिट वाली एंट्री हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप डिपॉजिट स्लिप टैली में से यूज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है पेमेंट एडवाइस। अगर कोई भी पार्टी को पेमेंट एडवाइस अगर देना है तो हमें जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे देना है पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑल लेजर्स दिखाई देंगे। अगर आपको ऑल लेजर्स अगर
और लेजर्स का पेमेंट एडवाइस सिलेक्ट करना है तो आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर सिंगल पार्टी का दिखना है तो वो भी। हम इसको जैसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी प्रिंट में। प्रिंट में जाते ही मुझे एक ऑप्शन शो होता है यहाँ पे करंट का। जैसे मैं करंट में जाती हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, ये ऑप्शन यहाँ पे नो है। इसको एनेबल करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन को एनेबल करना है। ये ऑप्शन को एनेबल करते ही इसको मैं करती हूँ सेव। इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर देखेंगे तो इस तरीके से हमें वो पार्टी का पेमेंट एडवाइस जो जो भी है वो यहाँ पे मुझे शो करेगा। अगर यहाँ पे आपको डेट वाइज अगर देखना है तो वो मंथ वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पेमेंट एडवाइस जो है हम टैली में से यूज कर सकते हैं। फोर्थ वाला हमारा ये ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन में हमें क्या है, जो भी हमारी बैंक डेट है, बैंक डेट और बैंक डेट के थ्रू हमें ये रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें बैंक डेट अगर डालेंगे और ये सेव करेंगे तो हमारा ये बैंक रिकंसिलिएशन हो जाता है। एक एंट्री का मैं आपको एक यहाँ पे बता दी थी। हमें यहाँ पे एक बेसिस ऑफ वैल्यू में ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें ऑल जो हमारे रिकंसाइल हुए वाउचर भी है और जो अनरिकंसाइल हुए वाले वाउचर अगर यहाँ पे देखने हैं तो यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू में हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर ये ऑप्शन को आप यस करेंगे तो जो रिकंसाइल्स हमारी एंट्री हो चुकी है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाती है। तो इस तरीके से हम बैंक रिकंसाइल्स का भी जो है बैंक रिकंसाइल भी टैली से कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन में अगर यस कर देती हूँ, मेरी अभी एक जो एंट्री थी रिकंसाइल वाली वो भी मुझे यहाँ पे शो करेंगी। तो इस तरीके से आप भी बैंक रिकंसिलेशन भी टैली में से कर सकते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। तो टैली से अगर कोई भी सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट हमें कस्टमर को पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड अगर शेयर करना है तो 3.0.1 के रिलीज में हमें यहाँ पे फीचर्स में एक ऑप्शन दिया गया है। कंपनी के फीचर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन को एनेबल करना है, एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक टू एंड क्यूआर कोड। इसको जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट ऑफ पेमेंट मेथड यहाँ पे दिए गए, पेयू, रोजर पे एंड यूपीआई। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो बनाए हैं। देखिए यूपीआई, जो भी अपना यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मर्चेंट नेम जो भी है यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। ये सेव क्यूआर कोड वाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन हमें एनेबल चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमें और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेट पेमेंट लिंक एक्सपायरी का, अगर यहाँ पे अगर मेंशन करनी है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको मैं सेव कर देती हूँ। इसका रिफ्लेक्ट कैसे होगा टैली में वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेबो, ये मेरी सेल्स की एंट्री है। ये पार्टी को मुझे पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड यहाँ पे शेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पार्टी को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ, अल्ट एक्स करती हूँ एक्सचेंज में। एक्सचेंज में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है पेमेंट गेटवे का, जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप करंट करके जो भी हमारा मतलब लेटेस्ट वाली एंट्री है उसको हम पेमेंट लिंक का क्यूआर कोड और लिंक शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट हमें एक पॉपअप देता है क्यूआर कोड इज जनरेटेड सक्सेसफुली। अगर इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, करंट प्रीव्यू, तो देखिए हमें प्रीव्यू में यहाँ पे क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक जो भी है हमारी यहाँ पे शो होती है। तो इस तरीके से हम क्यूआर कोड एंड पेमेंट लिंक टैक्स इनवाइस के साथ कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ये फर्स्ट है, हम लेजर थ्रू भी कर सकते हैं। सेकेंड एक ऑप्शन बताती, अगर डायरेक्टली एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे पॉपअप चाहिए तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अल्टर्स में, वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे हमें सेल्स में एक ऑप्शन दिया गया है
सेल्स में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। ये ऑप्शन को जैसे आप एनेबल करेंगे, हमारी सेल्स एंट्री होने के बाद हमें तुरंत वहां पे एक पॉपअप मिलेगा कि ये इनवाइस के अगेंस्ट अगर आपको क्यूआर कोड एंड पेमेंट लिंक शेयर करनी है तो हम वहां पे यस करेंगे। सेकेंड एंट्री का बता रही थी, मेरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे तुरंत हमें एक पॉपअप दिया जाता है, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। इसको जैसे हम यस करेंगे तो यस करने के बाद तुरंत हमारा वो रेफरेंस जो भी है, ये बिल का अमाउंट वगैरह यहाँ पे आ जाती है। इसी तरीके से हम इसको एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो हमारा ये बिल के अगेंस्ट भी क्यूआर कोड एंड अपना पेमेंट लिंक शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से हम को टैली में से यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लेवल है, टैली ने हमें दिया है कि हमारा जो भी है वेंडर को अगर तुरंत हमें कुछ शेयर करना है पेमेंट रिगार्डिंग, जैसे कि हम बैंक डिटेल शेयर कर सकते थे, उसी तरीके से हम पेमेंट लिंक का क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, इट इज डन। Okay. Thank you so much, Tejashree and Sonali, for the presentation. So now it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you everyone. So today is a session of the banking prime. So in terms of the banking, we are aware of the things कि banking is a very important part of the any of the business organizations. So किसी भी businesses में कोई भी transaction जो होते हैं वो banking के थ्रू भी possible होते हैं। अगर हमें banking अगर हमारे पास नहीं होगी तो definitely we are unable to manage our finance. We are unable to do any of the transactional and transfer the payment and receive the payment of all the things. So this is a very important part of the any of the organization. So banking को कैसे manage किया जा सकता है, day to day working, how we can manage the banking, like फंड आ रहे हैं, फंड जा रहे हैं, उसको कैसे उसके जो चेकबुक्स हैं, मैं चेकबुक की बात करूँ तो how we can track the checkbooks and all this stuff, how we can manage the transactional, like अगर आप किसी को इनवॉइस भेज रहे हैं या आप किसी से आपको पेमेंट मंगानी है तो उसके लिए आपको कैसे इजी टू यूज किया जा सकता है, कैसे हम लोग इजी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं, उसके पेमेंट लिंक टैली के थ्रू कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर को ताकि वो वी कैन शेयर दैट पेमेंट ट्रांजेक्शनल लिंक तो कस्टमर एक क्लिक पे पेमेंट कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है आज की डेट में टैली प्राइम के अंदर में। दैट इज अ वेरी इजी टू यूज एंड वेरी इजी टू मैनेज in terms of the bank reconciliation, जहाँ आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में good numbers of the transaction बैंक reconciliations बैंकिंग होते हैं, वहाँ पर multiple banks को भी हमें reconcile करना होता है। Reconciliation is always manual reconciliation is taking much more time. लेकिन अगर आपके पास टैली प्राइम है तो definitely you can manage your transaction, चाहे आपका thousands of the transaction है, that is a fraction of the minutes में आपका अपडेट हो जाता है। If you have a 10, 20, 20, 30,000, 20 transactions only, this will update within a 10, 15 second. So ये जो चीजें, ये जो फीचर्स हैं, जो फीचर्स आपके डे टू डे वर्किंग में, एवरीडे की जो वर्किंग में, आई कैन से कि 1 से 2 घंटे जो जाते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन को करने में और इस बैंकिंग को मैनेज करने में, वो टाइम को ऑप्टिमाइज करते हुए, एरर फ्री करते हुए विद इन 10, 15, 20 मिनट्स में वो काम कर जाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस को स्मूथली रन करना है और आप अपनी टाइम को दूसरी जगह यूटिलाइज करना है। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टुडे सेशन, जिसका बेनिफिट आप जरूर लें। और अगर आपको यू हैव नीड एनी ऑफ द सपोर्ट, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू इम्प्लीमेंट दिस ऑल द फीचर्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर सपोर्ट इंजीनियर्स, अकाउंट मैनेजर्स, and you can also check with us via my mobile number that is also available in the YouTube chat, जहाँ पर आप उसको भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। That's it from my side, Anna. You can carry on. Okay. Thank you so much, sir. So this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media to get the new updates. Thank you everyone for joining today's session. So we'll wind up the session now. Thank you.